behalf of Kalpataru, I again welcome you all to this fifth episode of our Inspire series. As you all know, this is our second season of Inspire series, and the first season was in 2020 when the pandemic started. And I thought of reviving this series this time with young and very dynamic artists that I have been talking to since this 2 weeks that I have revived this series. So I have been talking to many such young and talented artists. The intention is to only know the struggles, the challenges that these wonderful artists face, but yet keep their mark in the world stage. So wherever they are, how they have reached there, and what it takes to be there. So this is what the Inspire series stands for, and we wish to inspire many such aspiring artists, many such aspiring students of performing arts who would like to take this further as a career for themselves. So today also we have a very, very dynamic and talented artist who is going to join me in a while. You must have seen our poster out there. It is none other than Pranshu Chatur Lal, who is very well-known, acclaimed tabla player. He's very young. He's just like a brother to me. And without further delay, I would like to invite him on this platform, and then we would start our conversation with this very talented tabla player. So inviting Pranshu over here, just wait for a while. Pranshu, I hope you got an invite from my side. Hello, Pranshu. Hello, how are Namaste, you? namaste. I am good and so good to see you over here in our platform of Inspire Yeah, series. I'm completely honored and it's a pleasure to be here virtually, but we'll Yeah, be doing something live soon. sure. I'm really waiting for that. But I said that let's not wait till then. And before that, we should at least start the initiate the conversation at least. So I'm so happy to have you, Priyanshu, over here. And as you know, this Inspire series, I also spoke about it a little bit, is all about how your life can inspire so many others who are aspiring to be like you. So with that, let me ask you this question. Are you able to hear me, Pranshu, properly? Yeah, I can. There is a little bit of echo which is coming. Uh, So let me can do you one say? thing. I'll just keep off my. Give me a second. Uh-huh. ठीक है आवाज? Now it is better. It Yes, is better? Okay. yes. So, Yeah. So first of all, also there are many who are joining us. Abhik, thank you for joining in. Devaditya, thank you for joining. So please be with us. We have just started the conversation, and I'm sure it's going to be interesting. So Pranshu, my first question is that you belong from a very illustrious family of, I don't have to say, but everybody knows about your grandfather and or father and all the lineage that you have. So, having said so, tell us something about how it was to uh, getting raised in this kind of an atmosphere where everything around you, you might have, even heard the sound of music within the womb of your mother. So how did you, started with this unique atmosphere that you got in from your birth itself? So how it, yeah. yeah. So, जैसा आप सब जानते ही हैं कि that I'm very lucky to be born in this family and अच्छी चीज ये रही वैसे अगर कुछ ना भी होता तो कलाकार ही बनता तो ये तो पक्की बात थी लेकिन
क्योंकि अगर बनना था और इस फैमिली में मुझे जन्म लेने का एक बहुत अच्छा, मैं लकी रहा कि मुझे इस फैमिली में जन्म मिला। तो उस चीज से मेरे ख्याल बहुत ज्यादा फर्क आया है। मेरी एक रही अपब्रिंगिंग शुरू से, वो बहुत ही हम्म म्यूजिकली इंक्लाइंड रही है। एंड हम्म बहुत ही, जैसे आप सब जानते ही हैं कि जैसे एक कलाकार की फैमिली में होता है एक बहुत ही अदब, बड़ों का सम्मान हम्म करना और कैसे हम्म पेश आते हैं आप सामने वाले के साथ, वो सब बहुत हम्म जरूरी है। तो वो हम्म सब बचपन से ही सिखाया गया, समझाया गया। और कुछ बातें आप घर में सीखते हैं, कुछ बातें आप घर के बाहर सीखते हैं। तो बिल्कुल। जो मैं हम्म घर के अंदर सीख सका वो सब मेरे पिताजी की देन है, जो उनने मुझे समझाया और सिखाया। और जी, मैं हमेशा उनका बहुत आभारी रहूंगा कि उनने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये लेगेसी आगे लेके जा सकूं। एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, दीदी भी तबला बजाती हैं थोड़ा। तो श्रुति दीदी और ऑल्सो प्लेज अ अरे लिटिल। ये मैं ही नहीं जानती थी। अरे रियली? श्रुति नेवर टोल्ड। She plays a little ओह bit, माय yeah. गॉड। She plays ओह cajon, रियली? things, many other things. She used to play a sitar a little. वाओ। So yeah, but श्रुति then थोड़ा मेरा थोड़ा छुपी रुस्तम इंक्लिनेशन है। बहुत ज्यादा रहा म्यूजिक की तरफ। और हम्म एक्चुअली बचपन से ही माहौल ही कुछ ऐसा था कि संगीत चल रहा है हर हम्म कमरे के अंदर, या तो तानपुरा है, हम्म या तो दादी कोई भजन गा रही हैं। अभी मेरे को हम्म। हाल ही में उनकी रिकॉर्डिंग मिली, वो पुराना कोई भजन गा रही है, पापा ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अच्छा। एकदम लगता है वो भजन गा रही हैं और क्लासेस हो रही हैं, पिताजी सिखा रहे हैं। आई यूज्ड टू बी थ्री, हम्म। मतलब बच्चा उस time पे इतनी टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाता, बट द वे आई हम्म वाज रेज्ड वाज एकदम ही अलग। मतलब तीसरे हम्म। जाति, चतुस्र जाति, खंड जाति, ये सब हम लोग लेटर ऑन सीखते हैं। पहले तो हम लोग, सीखते हैं। है ना, हाँ उसकी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, जैसे हम लोग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दा, जैसे एक हाँ छोटी सी हाँ एक्सरसाइज है। तो ये हाँ। अगर बच्चे के सामने अगर आप बोलते रहो, दोहराते रहो, तो वो समझ जाता है, फाइनली वो एक फ्लो बिल्कुल बन जाता है। सो बिल्कुल। यू टीच मी वो लाइक दैट। पहले की या गाड़ियों के अंदर हमारे पास फेट थी, तो उसमें 4 अच्छा। गियर लगते थे, तो 5 गियर हो गए हाँ स्पोर्ट्स कार के अंदर, हाँ। और 7 भी। तो राइट। 4 गियर का उन्होंने नाम रख दिया, बिकॉज आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार व्हेन आई वाज अ किड। तो हाँ हाँ हाँ। उनने भिन भिन धा, अरे क्या बात। अरे वाह। हाँ, एंड दैट्स हाउ आई लर्न फर्स्ट टाइम कि धा दिन हिंदा क्या है। क्योंकि जब वो गाड़ी चलाते थे, आई टू सिट इन हिज लैप्स, यू नो अच्छा। हाँ हाँ। डिफरेंट उनके तरीके होते थे कि मुझे कैसे म्यूजिक की तरफ एक रुझाव दिया म्यूजिकली की क्या बात कैसे। है, क्या बात है। वो एक अलग अपब्रिंगिंग रही है। मैं एक्चुअली बहुत अच्छे हम्म से अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक्चुअल रहा है। तो वो जो एक अपब्रिंगिंग मिलती है कलाकार के खानदान में, हम्म वो एक अलग ही है। और फिर बोलते हैं कि भाई जीन्स में है, वो तो होता ही है। और हम्म ख्याल वो जीन्स में तब आता है जब आपको उस माहौल को चौबीसों हम्म घंटे आप उस माहौल में रहते हैं। हम्म। तो बुजुर्गों का एब्सोल्युटली। बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर कि मुझे ये मौका प्रदान दिया उन लोगों ने। हम्म। और मैं इस चीज को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग का प्यार रहेगा तो इसको जरूर आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप दैट इज व्हाट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि कैसे ये नेचुरली तुम्हें मिला हुआ है प्रांशु, एंड फॉर अस लाइक आई डोंट बिलोंग टू अ family who is musical, though my mother is a singer, but the kind of atmosphere that you are talking about, उसमें जैसे एक बच्चा जो है वो अट्यून्ड हो जाता है, उसको अलग से टेक्निकलिटीज शायद वो बाद में जाके सीखे, जैसे आप तुमने अभी बताया। सही लेकिन कैसे वो नेचुरली एक रिदम का सेंस होते रहना बचपन से, द वे यू सेड दैट आप गियर के थ्रू आप समझ रहे हो कि धा धिन धिन धा कैसे शुरुआत हो रही है। दिस इज सो वंडरफुल एंड सो इंटरेस्टिंग टू नो इवन दैट इस तरह से भी सिखाया जा सकता है। सो दैट इज वंडरफुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग। But coming to this point, Pranshu, that not everybody is as lucky that will have this atmosphere from the childhood, and they gradually get to understand the complexities of the music, of rhythm and everything gradually. So, what is your मतलब तुम्हें कब ये एहसास हुआ कि now you have to invest your time into it, and how you started taking it consciously towards learning things, towards understanding things?
कुछ तो तुम्हें नेचुरली मिला और कुछ तुमने वर्कआउट किया होगा, तो वो कैसे और कब शुरू हुआ? बिल्कुल। तो जैसे ये चीजें बहुत ही नेचुरली रही, मतलब एक्चुअली सच बोलूं, एकदम सच बोलूं ऑनेस्टली, तो ये बिल्कुल। इतना नेचुरल प्रोसीजर था जो रहा हम्म। कि मुझे खुद भी, यू नो, मैंने एक बार पहले भी बोला है कि आई रियली वांटेड टू बी अ पायलट। जब मैं बचपन ओह, में अच्छा। था ना प्लेन चलाना, सो आई यूज्ड टू बी सो फैसिनेटेड एंड आई यूज्ड टू बी, मतलब मैं बोलता था घर में कि मुझे अच्छा, पायलट बनना पायलट है। बनना है, तो अच्छा। तो उसके बाद कब कब के अंदर, क्योंकि जब आप रियाज करते हैं, एक चीज मैं हम्म। बोलना चाहता हूँ, जब आप सच्चे दिल से प्रैक्टिस करते हो, एक तो होता है कि भाई मन नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, वो बच्चे के, हम्म। हर बच्चे की कहानी होती है। तो हम्म। लेकिन जब आपको रियाज में मजा आने लग जाता है ना, कि जब वो या। प्रैक्टिस करना है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्रैक्टिस, दैट इज यस। द टाइम। वो फिर आप, मतलब जरूरत नहीं है मतलब कोई सिस्टम की, वो फिर ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा इंक्लिनेशन आ जाता है कि हम्म। आप यू आर टोटली इनटू इट। एंड एब्सोल्युटली। सच है, ये बिल्कुल। एकदम फैक्ट बात है, और मैंने इसको बहुत फील किया है। मतलब मेरे कुछ ऐसे सेशंस रहे हैं अपने फादर के साथ जो मतलब अमेजिंग रहे थे। हम लोग यूएसए में थे, मिलेजवेल में, एंड हम्म। मम्मा एंड श्रुति वेंट आउट फॉर शॉपिंग, एंड वी अच्छा। वर डिस्कसिंग सम म्यूजिक, सम सीरियस हाँ। म्यूजिक। वो मुझे संगत की थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी तिहाइयां होती है ना, जैसे हम लोग उखड़े गाते हम्म। हैं, हम्म। मुझे सिखा रहे हम्म। हैं। एंड हम सुन रहे थे पंडित रविशंकर जी की वो रिकॉर्डिंग मेरे दादाजी के साथ, और वो क्या मतलब क्या गा बात। रही है, वो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज, एंड यू हम्म। वोंट बिलीव, सुबह से शाम हो गई, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ कि ओ माय गॉड इतना टाइम बीत चुका है। ये एकदम सच क्या बात है, क्या बात। इट इज मैजिकल। एंड वो जब मैंने बचपन में जब वो महसूस किया, तो आई हम्म। वाज लाइक दिस इज इट, यू नो, आई डोंट वांट दिस टू इज इट। शिफ्ट, दिस इज वेयर आई वांट टू फोकस एंड स्टेप इनटू। हम्म। उसके हम्म। बाद मेरा एक अलग एक रहा इंक्लेशन, और उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं जिससे बच्चा बहुत हम्म। फैसिनेट हो जाता है कि भाई मजा हम्म। आ गया, लोगों ने मेरे लिए ताली बजाई। एक वो हम्म। चीज भी मुझे बहुत खींचा कि यू नो, हम्म। कि बहुत एब्सोल्युट। अच्छा एक आपको एप्रिसिएशन मिली है, तो उसका बहुत एक अलग ही आनंद है। एक बिल्कुल रियाज का बिल्कुल। आनंद और एक और एप्रिसिएशन एक का आनंद, ये एप्रिसिएशन। दो चीज हैं जो मुझे, मैंने कहा कि नहीं भाई यही करना है। सच बात यही बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुलेपन से तुमने ये बात कही है, और दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि ये अपने आप से ही आता है, ये सेल्फ मोटिवेशन है। वी ऑल गो थ्रू दिस स्टेज ना, कि एक है। वक्त तक एब्सोल्युटली। होता है कि आपको पुश किया जाता है कि रियाज करो, बट देर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट okay, I am enjoying my riyaz, I am doing it not एब्सोल्युटली। because my teacher, not because somebody is saying, but I am really enjoying it. और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि till one point I can push you, but there has to be a self motivation, and वो जब आ जाएगा, एब्सोल्युटली। then things would start changing. Wonderfully expressed. Hmm. सो प्रांशु, अब मुझे ये बताओ कि तुमने अभी यू हैव बीन वर्किंग सो मच also with world musicians, हाँ, जहाँ पे तुम you have collaborated with international musicians. तो जो हमारे रिदम का पैटर्न है और उनके रिदम का पैटर्न है, what have you uh, understood about, you know? इट इज, यू नो, इट इज एब्सोल्युटली यूनिवर्सल। चाहे नोट्स हो, सात स्वर, और ये हमारी जो बीट्स हैं, वन टू एक्सटेंडेड कितनी भी, है ना, Yeah. ये बेसिक साइंस कह सकते हैं, या बेसिक एक म्यूजिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, Hmm. और ये यूनिवर्सली हर जगह वही है। Hmm. अब इसको जब हम, व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो उनका अलग अलग म्यूजिक था। कोई 7 में, जैसे टर्किश म्यूजिक 9 में बहुत प्ले करते हैं, एंड दे वो Hmm. लाइक सो इजी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धूम, एंड दे गो ऑन। वो हमारे लिए 4:30 हो गया, 9 हो गया, तो हमको थोड़ा सा एक बार ये मत ताल, मतलब कैसे करेंगे, बट दे गो ऑन सो इजीली। वही मैं Hmm. कोरियन के अंदर गया, तो वहां पे 18 बीट्स थी, अरे, एंड अच्छा। उसमें डांस भी हो रहा है, एंड So 18 beat was a सपोज time cycle. They had a time time cycle, cycle. yeah. Oh, they Yeah, have a I'm trying to concept remember of the time cycle. chant. Yeah, अच्छा, and interesting. so different things, and बहुत ही गजब। I'm trying to remember the chant. I'm still trying to
धुम हम्म, ताता धुम ताता धुम ताता 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 धुम ताता धुम धुम ताता ताता धुम ताता क्या बात है, धुम ताता क्या बात है। धुम ताता 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 धुम ताता धुम धुम धाती गे ता 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 ता। ता, आहा, क्या बात। तो ये इन लोग का 18 का चल रहा था। एंड अच्छा। पाकुना मैम है, बहुत ही, शी इज अ ग्रेट लेजेंड, शी इज अ हम्म कोरियन salmonary wizard, I would say. हम्म, And I got the अच्छा। opportunity to take a workshop with her. I learned with her, and then उनको realize हो गया था कि मैं भी कलाकार हूँ. So she asked me to get my tablas. So we jammed, and then last में उनका last day was a concert, and then we collaborated. That's how it राह। happened. And then she said कि उनने 18 हम्म के बाद हम्म 5 6 मतलब वो एकदम ही अलग, एंड में हम्म, जाके she was playing 4 का छंद, टा 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 अच्छा, टा टा टा, इट वाज कंप्लीटली अमेजिंग, मतलब वो मजेदार चीज थी। तो क्या बात। जैज म्यूजिशियन साथ बजाया, तो वो लोग 7 तो में कर उन्होंने, रहे हैं। व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट दैट दे वर प्लेइंग? इट्स कॉल्ड आई मे बी, there are a couple of काहोन तो नहीं? instruments, one is book, I'm trying to recollect. It's हाँ, called a jhangu. Jhangu. अच्छा, झांगू। My ओके, pronunciation might be a little here and there, but yeah, it's called a अच्छा। jhangu. हम्म, Yeah, it's a salmonary instrument. It's kind ओके। of ढोल, तो वो दोनों तरफ हाँ से हाँ बजता है, हाँ, ऐसे भी दोनों बजता तरफ है से और बचता ऐसे भी है, बजता है। या। एंड शी यूज, ओ माय गॉड, शी यूज टू प्ले लाइक अमेजिंगली, और वो उनका इतना हम्म, फास्ट रहता था, एंड शी यूज टू बी सो फास्ट। उनके साथ मेरी एक वीडियो है, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे हम्म, भी शेयर किया, आपको बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, तो जरूर देखूंगी। वो हाँ। एक एक था, फिर एक पोलिश मैंने बैंड के साथ किया, उन लोग का रैप म्यूजिक हम्म था। तो वो भी हम्म एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग हम्म, जॉनर्स इसलिए ही है मेरे ख्याल, देयर आर डिफरेंट बिल्कुल जॉनर्स, बिल्कुल। बट फाइनली द बीट्स आर ऑल टुगेदर सेम। या, इट इज सो म्यूजिक माइट यूनिवर्सल, नो? जो, क्योंकि ट्यून्स हाँ अलग अलग है ना, तो हाँ। सबकी मेलोडीज अलग हैं। जैसे वेस्टर्न हम्म क्लासिकल सुनेंगे तो आप अलग ही, आपको एक अलग ही आएगा, मतलब वो अलग हम्म ही स्केल को अलग तरह से देखते हैं। जैज सुनेंगे अलग ही है, रॉक सुनेंगे तो उसमें एकदम ही अलग है। तो हम्म, सबके साथ मेरे को बजाने में बहुत मजा आता है। आई कैन प्ले विद एनीबॉडी, आई रियली एंजॉय या प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ या म्यूजिक, तो इसलिए मैं या, कोलैबोरेशन करता हूँ। lovely. And I also enjoy so much, to collaborate, because that is the joy of the spontaneity of our art. No, though Indian classical music is very structured. Sorry, Yeah. I just want to, Vedash, whosoever it is, we are talking music right here. We are not talking anything other than that. If you are not interested, please leave the session. Thank you. Please do not disturb us with your unnecessary comments. Thank you so much. Okay. So, Pranshu, I really want to know that these, when you are working with such international artists and such, there is a spontaneity. हाँ, वो Yeah. spontaneously हम उसको तैयार करते हैं, और even when you are saying, I can also recollect that, when I went to Korea, or Korea, नहीं, sorry, I went to Jordan, and I met someone who plays, उनका भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो लोग भी उसको तबला बोलते हैं। एंड Wow. आई ऑल्सो हैव, हाँ, उनको इट इज अ सिंगल Wow. इंस्ट्रूमेंट, You उसको gave एक me a new सिंगल project इंस्ट्रूमेंट now. है। या, यू कैन सी दैट इन माई यूट्यूब। उसमें भी हमने ऐसे ही एक दिन के कोलैबोरेशन में थोड़ा सा एक जुगलबंदी का पीस किया, बट आई वाज सो अमेज्ड टू नो दैट दे कॉल द इंस्ट्रूमेंट एज तबला ओनली. So Wow. this is wonderful to know that so many, variations are there, but somewhere they are merging in one line, because the music, as you said, no, rhythm is universal. It is like you can just Yeah, pick yeah. it up and then merge with something or the other. Absolutely. Uh, yeah. So, Pranshu, coming back to your collaborative work, I would Mhm. like to know that कि तुमने कुछ ऐसे कॉम्पोजिशंस जो उनके साथ बजाया है, या अपना कुछ कॉम्पोजिशन जो क्रिएट किया है, अगर कुछ हमें सुनाओगे तो बड़ा मजा आएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, एक एक जैसे एक बंदिश है, अभी मैं हाँ। हाल ही में उसको थोड़ा फरमाइशी में कोशिश करी है, वो आपको हम्म, सुनाता हूँ, आप लोग को शायद अच्छा लगे। तिन तिन ना तक धिन दिन ना धा धिन ना धिन दिन ना तिन तिन ना तक धिन दिन ना धगे तेरे किट धगे तेरे किट धगे तेरे किट हां धगे धगे दिन धगे तेरे किट ताग देता गिरता धीर गिरता धीर तक्का धा धीर गिरता धीर तक्का धा धीर गिरता धीर तक्का धा
धागे तेरे के धागे तेरे के धागे तेरे कड़ा धागे तेरे के देता देता उड़ता देर गिरता देर गिरता कांधा देर गिरता देर गिरता कांधा देर गिरता देर गिरता कांधा धागे तेरे के धागे तेरे के धागे तेरे कड़ा धागे तेरे के देता देता उड़ता देर गिरता कांधा देर गिरता कांधा देर गिरता कांधा। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। वंडरफुल तो थोड़ा वंडरफुल। थोड़ा मुझे काम कभी चल मन रहा है। मन कर रहा है कि उठ के कर दूं। बट अमेजिंग। एक कुछ और प्रांशु, जरूर या कुछ जरूर जरूर। कुछ एक कुछ मेरे रिदम। दादाजी की हाँ, बहुत ही खास चीज है, वो थोड़े पढ़ने में थोड़ा फंसता है लेकिन कोशिश करते हैं। अरे कोई बात नहीं। हाँ हाँ। दिन नाद धिन धिन नादा धिन ना धिन धिन ना तक नाद धिन धिन तक धक धन धक धन धक धीरे धीरे के तक तक तेरे के तक धक धक धीरे धीरे तक धक धक तक धन धक धन धक धीरे धीरे तक 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 धन धक। आहा, बाप रे, दिस इज रियली टंग ट्विस्टर। वो क्या, कौन सा बोल जा रहा है, एक बार तोड़ के बताओ, तक सीखेंगे धिन तुमसे। तक धिन धक धा तक धिनक धा, यही है क्या? तक धिनक तक धिनक तक धिनक धा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। पापा ने हमको ऐसे समझाया था कि तीन दिन नाथ के दिन दिन तक धनक धा, मतलब वो तक धनक धा। आहा, क्या बात है, वो घूम के आ रहा है। घूम। क्या बात, क्या बात। बहुत ही खूबसूरत। ये मतलब बंदिश सुन के ही ऐसा लग रहा है कि देर इज अ लूप काइंड ऑफ अ थिंग। या लाइक अ रोलर कोस्टर। काइंड ऑफ लाइक अ रोलर कोस्टर। वंडरफुल। तो प्रांशु, अभी जैसे तुम सिखाते भी हो, हाँ, तो जी किस तरह से, हाउ डू यू अप्रोच अ चाइल्ड और अ स्टूडेंट जिनको रिदम का सेंस आपको क्रिएट करवाना है? सो हाउ डू यू अप्रोच दिस? बिकॉज रिदम, आई बिलीव, इज समथिंग, लय और रिदम ऐसी चीज है कि आप एक हद तक समझा सकते हो, बट देयर हैज टू बी बिल्कुल। समथिंग विद इन ऑल्सो, है ना? तो वो व्हाट आई किस तरह एक्चुअली से? डू इज आई हम्म व्हाट आई एक्चुअली डू इज देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक थोड़ा शार्प माइंडेड हम्म होते हैं जो फट से पकड़ लेते हैं, और हम्म एक हम्म थोड़ा हम्म सा थोड़ा हम्म देर में समझ पाते हैं। तो हम्म। जो देर से समझते हैं उनके लिए थोड़ा मैं डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। जो फट से पकड़ लेते हैं वो तो पकड़ ही लेते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन या व्हाट आई तो जनरली डू इज कि आई गिव देम सर्टेन एक्सरसाइजेस हम्म। फॉर ले, कि अगर कुछ उनका अगर हिल रहा है तो हाँ चार के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई गिव देम शॉर्ट शॉर्ट हाँ। एक्सरसाइजेस जिसको वो पढ़ंत हम्म। करे, क्योंकि उनको मैं बोलता हूँ मतलब जितना आपकी क्लियर पढ़ंत रहेगी, जितनी ताल में बिल्कुल। पढ़ंत रहेगी, उतना आप उसको ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। पहले याद कर लो फोकस है। एंड देन यू ट्राई योर सेम हैंड्स चीज। ऑन इट। हाँ हाँ, दैट इज द सेम फॉर मेन द थिंग। अगर डांस, नो? कथक की भी हाँ, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, बिल्कुल। हाँ, उसको भी हम कि लोग हम जैसे द पढ़ंत टेक्निक इज सेम। करेंगे। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो पढ़ंत पे मैं बहुत सबसे पहले ज्यादा यही जोर कराता रहता हूँ। है। और हम्म जो लोग थोड़े से नहीं समझ पाते पढ़ंत तक में, उनको मैं हम्म। लिखवा देता हूँ प्रॉपर विभाग करके। एंड अच्छा। एंड देन आई अंडरलाइन द ताली, सो दे गेट क्लियर, हम्म। एंड धीरे धीरे उनको इस तरह से समझाया जा सकता है। तो मैं ऐसे ही करता ओके ओके। अभी हमारे यहाँ पे भी दर्शक जो हैं, देयर विल बी मेनी हु आर लर्नर्स, हु आर स्टूडेंट्स। अगर कुछ हूँ। तुम शेयर कर सको कि कैसे यू नो एज यू सेड कि स्मॉल लिटिल एक्सरसाइजेस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स हु आर ऑफ कोर्स, लर्नर्स। जैसे क्या? बेसिक एक्सरसाइजेस है। एक तो जैसे है कि जैसे कई लोग को ऑफ की प्रॉब्लम होती है, जैसे धा धाते हम्म। धा धाते धा धाते धा धाते धा धाते। तो बेसिकली पहले धा धा धाते धा धा धाते धा धा धाते धा धा धाते धा धा धाते, मतलब ये बहुत ही बिगिनिंग एक्सरसाइजेज है। हाँ हाँ हाँ, सो प्लीज डोंट बिल्कुल। डोंट नहीं जज नहीं मी ऑन नहीं। दिस। No, no, of course. I'm just asking because there would be, या learners also who are मैं watching. एकदम Just बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जैसे हाँ, आप बच्चे को समझाते हैं अलग अलग चीजें, सो यू ट्राई टू गिव हिम डिफरेंट हम्म डिफरेंट छंद। एंड बिल्कुल। वो सिंगल बीट में हो, चार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, 5 10 वो तो बात की बात है। हम्म। सो व्हाट आई डू इज धा धा धाते धा धा धाते धा धा धाते धा धा धाते धा धाते धा धाते धा धाते धा धाते धाते धाता धाता धाधा 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 दो धाधा। सो एक कम कम करने एक से एक थोड़ा करके उन लोग को मिस काफी होता जा फर्क रहा पड़ जाता है। है। और बिल्कुल इट बिल्कुल। गेट्स अ लिटिल बिट हम्म। इंटरेस्टिंग आल्सो फॉर द किड्स, क्योंकि वो बड़ा मजा लेके वो वन उनका मिस होता है, सो दे रियली एंजॉय हाँ, इट।
तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये कुछ काउंटिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैंने पहले बताया। जैसे अगर किसी को तीस जाती समझा रहे तो पहले तो उसको सिर्फ एक ताल का एक साइकिल समझाना चाहिए कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कीप गोइंग ऑन 1 एंड देन गो हाफ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 then 1 2 3 1 2 3 7। थोड़ा सा क्या बात। थोड़ा मतलब थोड़ा इंटरमीडिएट बच्चों के लिए है ये, जो थोड़ा समझ जाते हैं, क्योंकि उनको अगर जब हम पेशकार सिखाते हैं, पेशकार इज बेसिकली स्लो ले में बजता है, बट इट हैज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइक धाते धगे ना धा धा धे ना घे ना धाते धा ना धाते ना किड़े लगते तक 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 घेड़ा धाते धा धाते ना धाते धा धाते नकार धाते धा। क्या बात। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो ये सब समझने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, जो थोड़ी सिमिलर होती हैं, जो एक सेंटेंस के अंदर 10 तरह की बेहतरीन चीजें हैं, उनको अगर आप एक एक करके समझा दे, तो जब बच्चे को आप एक डिफिकल्ट चीज समझाना चाहते तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for sharing these. I think this is going to help so many of my students also who are watching. No, of course. Everything is a knowledge. See, Pranshu, maybe I'm elder to you, but that doesn't mean I can't learn. I am always open to learning. And I do mean in that sense, but I hope I said it because I hope it helps you. मतलब no, it helps your kids और मतलब जो भी सीखना चाहे, देखिए सीखने का तो कोई अंत है ही नहीं। सीखने की तो कोई सब अंत हमारे नहीं है। बड़े बुजुर्ग भी हैं, उन लोगों ने हमें यही तो तालीम दी है कि अगर, और मेरे में तो ये चीज बहुत ज्यादा है कि मुझे अगर अपने छोटे से भी कोई अच्छी चीज समझ में आ जाए तो मैं तो सीख लेता हूँ फौरन, क्योंकि सीखने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और मैं अपने बड़े से भी सीख सकता हूँ, किसी से भी, गुरु से तो हम सीखते ही हैं, हम उनसे तो लेते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने सहपाठियों से भी ले पाए तो उससे ज्यादा बेस्ट चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। Absolutely. Even I believe in that. And that's what I was saying, that if you share, then it will be, good for so many of us who are watching, and, even the kids who are wanting to take it as a profession. So, Pranshu, हमें कुछ ऐसा बताओ कि तुम, you have played with all the great maestros. Name a one and you have played with them, and Not you have all, been really lucky. some of them. Yeah, so many of them you have played, and all of them are legends. All of them are legends. So, कुछ एक ऐसा experience बताओ that, because I always feel that around, when you are around even with these legends, there is always something, there is always a learning. So if you can share that, any incidents that you had with any legend which has made you. Lots of incidents. Lots, I am sure it would. My very first Sangat, which I did with Pandit Haripura Chaurasia ji in 2011. I still remember the date. It was 2011 में 11 November. So it was 11/11. 11. It was a full moon concert, and I got the opportunity of my life to be able to accompany and sit with him. And I was so scared. मैं बहुत घबराया हुआ था। It was 10-11 साल पुराने की बात, और आज भी बैठूं तो आज भी डर के ही बैठूंगा, क्योंकि उन लोग का कुछ एक ऑरा ऐसा होता है कि हम ना, मतलब we just kids, मतलब उन लोग के सामने, मतलब हम लोग बैठ गए, वो हमारे लिए तो ही बहुत मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। और उनने इतने प्यार से मुझे एक बार भी फील नहीं होने दिया कि आई वाज अ न्यू कमर या कुछ भी, जैसे अगर इट वाज अमेजिंग। एक ऐसा डिविनिटी वाली फील थी कि वो मैं भूल नहीं सकता, और बहुत ही अच्छा रहा था, और बहुत ही उनका बहुत आशीर्वाद मिला था मुझे। तो वो एक बिल्कुल एक, क्योंकि पहली बार था, एंड उनके साथ, मतलब तो आई वाज, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा थी। आई वाज लाइक एकदम, आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम जब मैं स्टेज पे बैठा था जाके, all of the smile went away and I was scared. Oh my god. And then he was like, अरे बजाओ आराम से, खुल के। उनको तो ठेके से ही समझ में आ गया था कि डर के बजा रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे खुल के बजाओ, ऐसा क्या। Then he gave me a मौका बिगिनिंग के अंदर ही, उन्होंने कहा बजाओ अच्छे से।
और बजाओ. लंबा बजाओ और लंबा बजाओ। So that is तो how they बहुत, encourage, no? या बड़े लोगों की बड़ी बात है, उनमें इतना बड़प्पन एंड उनका इतना Hmm. जॉली नेचर और इतना प्यार Hmm. करते हैं सभी अपने छोटों Hmm. को और सभी को Hmm. बहुत प्यार करते हैं पंडित जी। True. तो True. उनके That साथ is मुझे how, पहला you मौका know. मिला तो आई एम ब्लेस्ड, यू नो। Yeah. तो ये एक इंसिडेंस है जो मैं Seriously, बिल्कुल you are truly lucky. या Uh, okay, so I let me read these good comments which are coming in. We love you. I remember interviewing him, and I can't. Why can't I read your? This is going. बिकॉज इट्स And he was गोइंग, so down to earth यू and हैव full टू, of rhythm. Ha, ha. या Thus, thank you so much. And all our viewers are really enjoying the conversation. I can see that, except but one who is really irritating us a bit. And आई एम I नॉट इवन really बॉदरिंग। wish, yeah, 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 yeah. So let's There's ignore some whatever. What people else? who cannot come on Yeah, face, you know, so they use yeah, fake IDs to do all this. I would say that. exactly. Yeah, yeah, yeah. So just ignore Pranshu. Yeah, yeah. Uh, I am not even looking at the comments, you know. I'm looking at hmm. you. We're talking. We're enjoying. Yes, yes, absolutely. Pranshu, one thing I always wanted to ask that because you have worked so much with Kathak dancers, huh? And Yeah. also, and I'm looking forward to this, though, whenever we would be able to collaborate. Very But soon, definitely. but till then, कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा सुनने में भी कभी कभी आता है कि कथक के साथ हम नहीं बजाएंगे लेकिन आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ tabla players have always played with Kathak. So, what is your take on playing with Kathak, It is even very after being a? challenging. First of Hmm, all, if you hmm, are a fixed tabla player of a Kathak dancer, things are hmm, slightly different. It becomes slightly easy. hmm, But if you're playing with somebody new, it hmm, is really challenging because you know you have to understand his or her mood, you know, which hmm, is very important. hmm, जैसे कई तबला पे कर देते हैं ऐसा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन hmm, hmm, कि मौका मिला और बजाते ही जा रहे हैं, hmm, hmm, यू नो। hmm, अब या तो आप कथक है, ये आप तब कर सकते हैं, ये मैं सभी लर्नर्स के लिए भी कह रहा हूँ, ये आप तब कर सकते हैं, बिल्कुल आप लंबा पीस बजा सकते हैं, लेकिन वो तब hmm, जब कथक डांसर एग्जिट कर जाए। hmm, hmm, अगर वो आपके लिए स्टेज पे इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज, अगर कोई भी hmm, यंगस्टर तबला प्लेयर हो, भैया कभी ऐसा ना करना, hmm. कभी ऐसा नहीं करना, वो बहुत गलत है। क्योंकि वो कब तक यू नो अपना कब तक पोज बनाएंगे और कब तक यू नो Hmm. इट बिकम्स हाँ, वेरी एक डिफिकल्ट। एक संगत की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है ना? हाँ तो बिल्कुल संगत बिल्कुल। एंड आपका शब्द जो है वो संगत है. यू आर सपोर्टिंग द एंटायर concert. So what is your role in bringing that, uplifting that performance, right? या एंड इट इज सपोज टू बी रियली चैलेंजिंग एंड Hmm. यू नो there's so many intricacies as in the language is slightly different, you know. Hmm. You would say ta thunga takit thunga and I have to play ta atina tit. Yes, yes. Every So time it is translate करना पड़ता है to ना? translate that immediately is a Hmm. very challenging job for a tabla player. जैसे Of आपकी course, गिनती of की course. तिहाइयां भी होती हैं, तीन दिन बिल्कुल. ना, एक दो तीन पाँच छह सात आठ सात, एक दो तीन पाँच सात छह, एक दो तीन पाँच छह पाँच, इस टाइप की जो तिहाइयां हैं, बिल्कुल, it बिल्कुल. is very difficult for a tabla player to grasp it and play it. Hmm. तो इसकी एक Absolutely. अलग एक तालीम होती है। मुझे तो बहुत सौभाग्य मिला कि महाराज जी से मेरे को Hmm. ये सब Yeah, सीखने को yeah. मिला। और Hmm. एक अलग ही एक टेक्निक है और उसको बजाने का एक अंदाज अलग है। बिल्कुल. और जैसे कितनी ज्यादा एक क्या कहते हैं ना, एक गेज करने की जो एक होती है या कि आपको गेज करना है कि कब मूवमेंट आपको देख के भी आप चमकदार पता चल. बजाना है, कब हम्म. जोरदार बजाना है और कब लचकदार बजाना है, ये क्या तीन बात. एस्पेक्ट्स हैं डांस के अंदर, है ना। तो ये तीनों का सही तरह से बैलेंस्ड होके बजाना, वो हम्म. सही कथक बजाना होता है, जो मेरे एब्सोल्युटली. को समझ में आया, जो मैंने एक्सप्लोर किया है। कि बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल. गद भाव कर रहे हैं तो गद भाव में हम्म. भी अब आप क्या भाव कर रहे हैं, अब पता चले गज की चाल हम्म. चल दी और बजा दिया रेला, तो नहीं हो सकता। वो तो मयूर का है ना। तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल. मालूमात होना, ये एक्सप्रेशंस ही तो, एक्सप्रेशंस को आप बजाने की कोशिश करते हैं,
तो वो बिल्कुल। उनका भाव जो जा रहा है उसको आप अपने तबले पे निकालें। अगर आप हम्म। निकाल पा रहे हैं तो आप बोलिए आप तबला बजा रहे हैं कथक के साथ, वरना और इसलिए मेरे ख्याल से कथक की प्रॉपर तालीम लेनी पड़ती है तबला प्लेयर को भी, मतलब सुन देखना पड़ता है बिल्कुल कि पाँव कैसे जा बिल्कुल। रहा है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई लड़ी कर रहे हैं या फिर कोई फुटवर्क कर रहे हैं या फिर उपज कर रहे हैं, अब मुझे तो नहीं हम्म पता कि पाँव कैसे जा रहा है, लेकिन हम्म। अगर मैं पाँव को समझ सकता हूँ कि क्या घिन है, क्या ताका क्या ताकी का कैसे जा रहा है, तो अगर मुझे चीज भूल भी गई है तो मैं पाँव को देख के पकड़ सकता हूँ। तो ये बिल्कुल छोटी बिल्कुल छोटी बारीकियां हैं, तो इस पे बहुत बिल्कुल। वक्त लगता है। अगर आप जैसे वोकल के साथ बजाना एक एकदम अलग है, फ्यूजन बजाना एकदम अलग है, सोलो बजाना एकदम अलग है, कथक के साथ हम्म बजाना एकदम अलग है, और सितार सरोद के साथ बजाना एकदम अलग है। तो हम्म। अलग अलग बिल्कुल। एस्पेक्ट्स हैं, तो कहाँ पे किस हम्म तरह से करना, और डांस के अंदर जान भी काफी लगती है, तो खैर सभी के साथ लगती है, लेकिन उसमें हम्म। एक बहुत ज्यादा अलर्टनेस जो होती है ना, अलर्टनेस, बिल्कुल वही उसी अगर की आप बात मैं चिट्टा कर रही बजाना थी। चाहो तो देखिए वो तबला प्लेयर के ऊपर है अगेन। तो अगर आप चाह हम्म। रहे हो कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट, फॉर दैट यू हैव टू बी हम्म। वेरी अलर्ट, यू हैव टू या। बी रियली अलर्ट फॉर दैट, क्योंकि डांसर यस। का मूड है वो कभी भी कैसे भी कुछ भी कोई भी चीज कर जाए, तो उसको आप कैसे, अगर छूट भी गए तो कैसे संभाल के लाएंगे आप, उसका भी एक बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, बहुत ऐसी बारीकियां होती हैं जो कर करके आती है। बिल्कुल। मैं एकदम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और तालीम रट लेने से नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अपने आप में जैसे कथक इन इटसेल्फ इज सच अ स्पॉन्टेनियस आर्ट फॉर्म कि या तबला प्लेयर को जो तुम कह रहे हो ना कि इट हैज टू बी ट्यून्ड, मतलब तबला प्लेयर को उसको देखने की आदत होनी चाहिए कि आप बिल्कुल उसको बिल्कुल। कुछ सालों से आप उसको देख रहे हो, क्योंकि देख के जो समझ आप ले रहे हो उसी को आप ट्रांसलेट करोगे फर्दर थ्रू योर इंस्ट्रूमेंट. So सही that is बात है। very well said, Pranshu, and I really believe that that is how tabla players approach to be. Because, but unfortunately, सबका approach नहीं होता है. So it is like, जी that is when the concert gets little shaky because it's या not always, you might be very good with your rhythm, you might be very good with your technique, but when you are playing with a Kathak artist, it requires a certain amount of understanding of the dance form per se, the movement per se, the repertoire of Kathak. या Exactly. Yeah. So दैट्स yes, एब्सोल्युटली wonderful. राइट। So, Pranshu, now coming to this point of inspire, that is our talk for today. So, what do you think are three very important things that an aspiring performing artist should have? Like, कौन सी three qualities पे sharpness होनी चाहिए जिससे कि आप एक प्रोफेशनल करियर इस फील्ड में बना पाओ? सबसे पहली चीज, जिसको आप अपना गुरु मान रहे हैं दिल से, उसके प्रति आपको एक सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर डजंट मीन ऑल दैट, बट इट्स ना Uh, उसको, Pranshu, we lost you for a इट वेंट आउट फॉर अ while. सेकंड। Yeah, या yeah. आई Can थॉट you सो। repeat? Yeah, yeah. या सो गुरु को जो गुरु ने सिखाई है, जो जो राह दी है उनने, उसको आंख Hmm. बंद करके पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले तो चलें उस राह पे, क्योंकि जो Hmm. आप नहीं देख सकते वो आपका गुरु देख रहा है आपके लिए। ये Hmm. सबसे मेन चीज है। ऑफ कोर्स डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियाज साधना जो हम करते हैं वो बहुत Hmm. जरूरी है। और Hmm. जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब आप सीखते हैं, आप सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, फिर उसके बाद सही वक्त पे बाहर Hmm. निकलना भी बहुत जरूरी है, कि आप Hmm. अब जो सीखा है उसको आप अप्लाई करें। देखिए जब हम क्लास Hmm. में जाते हैं तो हमारा एक सिलेबस होता है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, उसको हम चमकाते हैं कि जब हम स्टेज पे उसको बजाएं या उसको हम डांस करें तो वो ऐसा है कि लोग वाह वाह करते हैं उस चीज की, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज होने के बाद जब हमको लगता है कि हाँ अब शायद थोड़ी वाह वाह हो सकती है, then you start experimenting and you start doing it outside। फिर आप बाहर निकले, Hmm. आप दुनिया देखें, क्योंकि आप एक घर के अंदर सीखते हैं और एक आप घर के बाहर सीखते हैं। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, जब हम लॉ करते हैं, जब हम सीए करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक होती तो पढ़ाई हो रही है, Hmm.
अब वो तो हो गया 5 साल का 3 साल का कोर्स, उसके बाद जब आप एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट, या just एंड फिर आप उसको एक्सपीरियंस करते, देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, एंड वो एक अलग हम्म, फेज है तो कलाकार बिल्कुल के। और देन कम्स द लर्निंग फेज, एक्चुअली जब आपको आंख हो जाती है चीजों को सही तरह से हम्म, देखने की, हाँ, तब आप उसको सही तरह से बढ़ते हैं। तो ये शायद 3 से थोड़े ज्यादा हो गए, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी no हैं but yes जो मतलब अगर हम मतलब मजाक तो थोड़ा चलता ही रहता है, वो तो कलाकार थोड़े होते ही हैं वो तो होता ही है बीच में। बट ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे को बचपन से समझाए भी गए हैं और मैंने उसको करने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं आज तक कर रहा हूँ। अभी भी पहुंचे थोड़े ही हैं, वो तो एंडलेस है ना, वो करते जाना हम्म, है, करते जाना है, करते जाना है, वो धीरे 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 होता बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल there is no end to the देयर इज नो एंड। reaching out is never there, no, या it is always a journey, never a destination, isn't it? एब्सोल्युटली। सो Yeah, या so very wonderfully expressed, Pranshu. And there are some questions coming up, so I would like to ask. These are like, what kind of a music do you create when you get inspired? Somebody has asked. So I have reframed it because I am not able to see that question again, but I read it. So they are asking that, कैन यू प्लीज huh, रिपीट द uh, क्वेश्चन वन मोर टाइम? You has asked you, can Pranshu tell us what kind of a music does he create when he feels inspired? Inspired. I see whenever I'm inspired, I try to create something peaceful or Hmm. something like really creative. I Mm-hmm. would like to step out of my comfort zone and would love to Hmm. do something Challenge else. yourself. Yes. Yeah, that's what I do. That's my personal opinion. It can be different for for different No, people no, or different that is artists, what, but that's what I do. and When I'm inspired of anything, I try to grasp it somehow, and I try to apply it. hmm. Where I can apply it, how I can apply it. Will it be okay if I apply it? I think so many things. Mm-hmm. So बस यही एक है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ इस बारे में. So, coming to that, then tell us that what inspires you. तुम्हें कहाँ से inspirations मिलती Inspiration can be anything. हैं? Like Inspiration what? can come from a child. It can come Yeah. from your surroundings, your friends, your family, your elders, anybody. Mm-hmm. Uh, There can be Inspiration can be moments anything, also. any positive thing which Hmm. attracts you actually inspires you, है ना? Yeah, So absolutely. So there is so much around us which can inspire us and motivate us absolutely, further, right? Yeah. yeah. Uh, so there is another question from Tempest Docker. If I'm not, I'm sorry if I'm correctly pronouncing your name. Could we ask Pranshu when his next concert in Canada is scheduled? Okay, somebody is Oh my asking. God. Somebody really wants to, have you in Canada. Ask God, please. My shows have been, getting cancelled every year. For all of us, So it I has really been hope such a to play tough in phase. Canada Very. soon. I'm planning Mm, things. So yeah, mm. see you soon, buddy. Whoever you are, thank you so much. Yeah, so Pranshu, it has been a very, very tough period for all of us, those who are into It performing was. arts. For last 2 years, all our concerts are getting cancelled, and which we were also planning is somewhere, going to get shape, but whatever. But tell us that how did you manage this last 2 years of pandemic with your music? What all you have done, and how you still created things, and what still motivated you during this past I 2 years? learned so many new gadgets, first of all. Ah, जब नया नया आया था, I was taking a class through a vase and I put a selfie stick का stand into it and I fixed it somehow. That was my stand क्योंकि सब बंद ही था ना. But yeah. then, getting all the stands and lights and all those things, technical things के अंदर भाई अब थोड़ा Hmm, थोड़ा समझ में आ रही हैं चीजें. पहले तो हम लोग क्या करते थे, रियाज ही तो करते थे, सब कुछ hmm, सेटअप नहीं कर सकते थे. तो एक अच्छी चीज ये मैंने बिल्कुल. सीखी कि कैसे ये सब नई नई चीजें कितना सब हो चुका है. मतलब ये तो एक तो सीखने को बहुत मिला.
सच बोलूंगा तो Technology. मैंने बहुत Yeah. अलग अलग तरह की रिकॉर्डिंग की चीजें सीखी। मैंने रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अपने घर पे, मैंने एक छोटा सा एक होम स्टूडियो बनाया। वो सब Oh, छोटी really? छोटी 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 Okay. चीजें हुई हैं। सब अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे लिस्ट में है, चल रही है। और मैंने तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करी है। नई नई चीजें, और म्यूजिक तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग नई नई चीजें क्रिएट करते हैं। हम लोग हर रोज ही कुछ ना कुछ नया, मैं तो रिकॉर्ड करता जाता हूँ, आई कीप रिकॉर्डिंग एवरी डे। Hmm. And that's what I've been doing. Nothing much really. Learning new No, things. nothing much. I think this is the most important. See, saying from my personal experience, and don't believe me, the all of them whom I have been talking, all the artists and friends who are in this field, all of them are in unison in saying that these 2 years have been the most productive years in the life of performing artists. अ, अगर आप बाकी प्रोफेशन से Not पूछेंगे तो कहीं ना financially though, कहीं but yeah, we not learned so many financially. things. Yeah, not financially. Absolutely, financially we have been crashed like anything. Oh my God, But yes. the moment you ask about your personal creativity, your Yes. own growth, that ways I think all of us are saying the same thing. Even I, from my personal experience, have been saying this to so many people that these 2 years have been very transformative in some way. Of Yeah, course, as you said, that financially, absolutely. absolutely not. But internally, we have worked so much on ourselves that we feel that now we are ready to explore. Now we are ready Right. to move back to the stage. So now the time is Yes, there that, absolutely. We're all set. yeah. And you know, So I I think we really are hope. more prepared now. I Yes, have yes. much more knowledge than I had Hmm, रिगार्डिंग द टेक्निकल थिंग्स। पहले स्टेज पे लाइट आ रही नहीं आ रही ध्यान नहीं जाता था। अब जब से एक hmm. स्क्रीन पे आ रहे हैं ना सामने, तो अब ये सब चीजें छोटी 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 चीजें, बहुत मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें जो सीखी इन 2-3 साल बिल्कुल, में। बिल्कुल. और अब बस अब आई थिंक लॉट ऑफ बहुत सीख बस लिया। आई वांट टू गो अब बैक टू स्टेज। the same I'm coming back to that अब जो 2 साल सीख लिया it's enough for another या now we are ready to come back to stage and we are really looking एब्सोल्युटली। forward that कब stage पे मौका मिले और कब ये सब we are in a better time कि we can uh, bring back those days which were Those days, yeah, those pre-pandemic amazing days. pre-pandemic Yeah. absolutely absolutely I miss the backstage fun and whatnot. You know, it used to be traveling travel and meeting travel artists in the queues of the, check-in yes yes counters, whatnot. Yeah, it used to be something amazing. something amazing and the travel has always been such a motivating factor in our profession no that we get to travel so much and suddenly all the travel got cancelled and suddenly we are like as if घर ही है और कुछ है ही नहीं Such में, such में. yeah so yes so almost I think we are running out of time Pranshu and I really want to thank you for all the time that you have given and so honestly you have shared such wonderful thing एक last चीज जाते जाते मैं पूछूंगी that who do you feel is your support system Support system, my family, of course. My sister, and she really right supports me to the next yes level. she is such a I'm wonderful really lucky to person have out her there in my life. very very lucky to have Yeah, yeah. And she's been supporting. See, I had a rough Shruti phase of all time in. kudos to you Shruti I'm sure that you are there I hope and she's watching us live. Is she is she online? there she Oh, was there okay. oh she's not there Lovely. I thought I would call her for a while she's there Shruti if you're there just let us know then come over just last हम adieu करते हैं अगर आप हो तो आ जाओ I will send you a request I can't see it okay no she's not there I think She must be busy anyways with so others. yes yes He's yes getting yes naughty every day. yeah but I saw he was playing Damru I said I oh have taught him what Dhadin else Ninda, so he speaks Dhadin Ninda now. अरे वाह this is how that as you related कि Yeah, जैसे तुम्हारा हुआ था now he will be into that atmosphere and
He will learn things naturally rather than learning it, structurally in later years. So such, great atmosphere that you can give it to him. Yes. Try my So best. thank you, Pranshu. Thank you so much. And thanks to all our viewers. You were so lovely and wonderful. And I'm sure you have enjoyed a lot uh, talking to Pranshu. And we are really looking forward to your future endeavors, Pranshu. Best wishes from Kalpataru and best wishes from me. And really hope that we can collaborate soon and work together. Yeah, looking forward, completely looking forward. Yeah. Okay, Pranshu. Thank you Okay, so thank much. you. Goodbye. Thank Yeah, thank all our you. viewers. Thank you for being there and keep following us for more such sessions. We are uh, into this for some time now, so you can interact with